Okay, students, welcome back again on my YouTube channel, Pankaj Garg Teacher. So, again, we are going to discuss the chapter we have started last time, that is gravitation. Last time, we have discussed about the characteristics and the properties of gravitation. जो बेटा लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था कि ग्रेविटेशनल की कुछ हमने करेक्टरिस्टिक डिस्कस की थी, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि ग्रेविटेशन की जो करेक्टरिस्टिक है वो क्या है। एक तो मैंने आपको जो ये फॉर्मूला ड्राइव करवाया था, दैट वाज व्हाट, F इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। फ्रॉम दिस फॉर्मूला लास्ट टाइम we have discussed that ki this force is inversely proportional to this r square, so that the value of g which obey what, the gravitational force obey inverse square law, it obey inverse square law. And also we have discussed it is a central force, it is an attractive force, and it is always attract toward the center. And one more important thing we have discussed, that is gravitational force is a conservative force. So these are the characteristics we have discussed last time. So today the topic which we are going to start, that is gravity. So now we have a differentiate between gravitation and gravity. So what is the difference in between these two terms? So as you all know, the gravitation, basically a gravitational constant, which is represented by g, and its value we have 6.63 into 10 raised to power minus 11. ये जो वैल्यू है हमने लास्ट टाइम ये निकाली थी, और इसके यूनिट क्या थे, न्यूटन मीटर स्क्वायर kg minus 2. So basically this was the unit of gravitational constant. So today that our main topic is, that is gravity. So that we are going to discuss it. So now I am going to explain you what is gravity, and the what is the difference between gravitational force and gravity. So now I am going to start with a new topic, that is gravity. बेसिकली जो ग्रेविटी होती है उसको स्मॉल जी के साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो ग्रेविटी का हम जो ये जब फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, तो वहां से हमें एक स्मॉल जी की वैल्यू हमें देखने को मिलेगी। सो दैट इज व्हाट, दैट इज ग्रेविटी। तो बेटा ग्रेविटी वो फोर्स होती है जब भी अर्थ कोई भी बॉडी को अपनी तरफ खींचती है। सपोज आई हैव दिस मार्कर, राइट। सो ये जो मार्कर है इस पे जो फोर्स लग रही है, देखो ग्रेविटेशनल भी लग रही है, बट जो ग्रेविटी है वो हमेशा डाउनवर्ड लगती है। इट ऑलवेज एक्ट डाउनवर्ड, इट ऑलवेज एक्ट downward by the by the by the earth, by the earth। जो अर्थ इसको खींच रही है बेसिकली, दैट इज ग्रेविटी। सो नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी। सो जो हमने लास्ट टाइम जो फॉर्मूला ड्राइव किया था, हम उसी के बेस से हम ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। सो लेट्स take an example. So let's suppose this is our earth basically. So I have a, the center of this particular earth is O. So basically I have a placed object somewhere on the surface of earth, right? So now when I object placed on the surface of earth, basically here जो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है, दैट वी कैन से दैट इज r, राइट। सो जब भी मैंने बताया कोई भी ऑब्जेक्ट धरती के सरफेस पे है, तो बेसिकली जो उस पे डाउनवर्ड फोर्स लगती है, दैट इज वेट। जो डाउनवर्ड फोर्स लगेगी कोई भी ऑब्जेक्ट की बाय द अर्थ, उसको क्या बोलते हैं बेटा हम, वेट। और वेट जो होता है इट डिपेंड अपॉन द मास एज वेल एज ऑन द ग्रेविटी।
So I can say the weight is equal to mg. So again, let me explain you again this. So I have a mass, I have placed any of the surface on the earth, right? So जो ये फोर्स लग रही है अभी नीचे को, जो ऑब्जेक्ट के फोर्स लग रही है, डाउनवर्ड फोर्स लग रही है, वो किसके बराबर होती है बेसिकली? वो होती है बेटा वेट के बराबर. सो जो हमने लास्ट टाइम जो फॉर्मूला लिखा था दैट वाज व्हाट? जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर. सो नाउ आई कैन से if I place the object over there, let's say the mass of that particular object is small m, right? So जो उस पे जो फोर्स लग रही है that is equal to what? वो किसके बराबर है? अभी बताया वेट के बराबर है. So I can write force as a weight. So again यहाँ पे जो हमने ये वैल्यू एज इट इज लिख दी, और आपको पता है जो ये वेट की वैल्यू है दिस इज व्हाट? दिस इज mg. दिस इज mg. सो बेसिकली जो यहाँ पे हमारे पास g का जो फॉर्मूला है वो डिराइव होगा. सो हेयर m है जो m के साथ कैंसिल हो गया. सो व्हाट वुड बी द फॉर्मूला? सो जो हमारे पास फॉर्मूला आया है दैट इज z इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर. सो जो हमने लास्ट टाइम बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला निकाला था वो ये था हमारा, राइट? अब जब हमने स्मॉल जी का फॉर्मूला लगा रहा है तो यहाँ से एक मास क्या हो गया? खत्म हो गया. सो इट मीन्स फ्रॉम दिस फॉर्मूला वी कैन से आप किसी भी प्लेनेट पे चले जाओ, इफ यू नो द वैल्यू ऑफ दिस जी, if you know the mass of that particular planet, if you know the distance of the planet from the sun, right? So you can calculate the value of g, right? So you can calculate the value of g. So जब भी हम ये सारी वैल्यूज पुट करते हैं, जब भी हम ये सारी वैल्यू पुट करते हैं, जो भी हमारी अर्थ की जो जितना अर्थ का मास है, जितना अर्थ का रेडियस है, जब भी हम इस सारी वैल्यूज को पुट करते हैं, जो जी की वैल्यू है वो कितनी निकल के आती है बेसिकली? दैट इज 9.8 मीटर सेकेंड माइनस 2. सो यहाँ पे जो मैंने फॉर्मूला जो निकाला है दैट इज जी. बेसिकली दिस जी का मतलब क्या है? दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ये जो जी है बेसिकली, ये जो ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे रखा था, जो इस पे फोर्स लग रही थी, दैट फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट. वो वेट की वैल्यू मैंने mg पुट की और m से m कैंसिल हो गया और मेरे पास ये क्या हो गया बेटा? फॉर्मूला मैंने डिराइव. सो फ्रॉम दिस वी कैन से जो g की वैल्यू होती है बेसिकली इट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इट डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, राइट? सो जी की वैल्यू वेरी करती है. कोई भी प्लेस पे चले जाओ आप, वहां पे जी की वैल्यू हमेशा वेरी करेगी. लेट्स से अगर मैं बात करूं हमारे पूरे अर्थ की, तो जब भी अर्थ का जो इक्वेटर होता है बेसिकली, जो अर्थ का ये क्या होता है हमारा इक्वेटर ही तो होता है. 0 डिग्री लैटिट्यूड जिसको हम इक्वेटर बोलते हैं, 0 डिग्री लैटिट्यूड इक्वेटर पे जो जी की वैल्यू होती है वो क्या होती है? कम होती है. जी की वैल्यू क्या होती है? कम होती है, लीस्ट होती है. जो इक्वेटर पे एट इक्वेटर द वैल्यू ऑफ जी, इज स्मॉल. इक्वेटर पे जो जी की वैल्यू होती है बेसिकली वो क्या होती है? स्मॉल होती है. अगर मैं बात करूं सेंटर ऑफ द अर्थ पे जी की वैल्यू क्या होती है? तो वो जीरो होती है. क्या होती है? जीरो होती है. अगर मैं बात करूं जब भी इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं हम, व्हेन यू आर गोइंग फ्रॉम इक्वेटर टू अ पोल, जो जी की वैल्यू है बेसिकली वो इंक्रीज होती है. कोई मान लो आपने कोई वेट किया, सपोज यू हैव अ वेट ऑफ अ पर्टिकुलर अ मेटल, सपोज यू हैव वेट अ गोल्ड, और गोल्ड का वेट आपने सेंटर में किया, इक्वेटर में कोई भी जितने भी प्लेसेस हैं वहां पे आपने वेट कर लिया उसका, ठीक है? जो वहां पे जो वेट होगा गोल्ड का बेसिकली वो कम होगा. जब आप वही वेट पोल्स पे करोगे कहीं भी प्लेस में पोल्स पे, तो वहां पे जी का जो हमारा वेट होगा, जो हमारा गोल्ड का वेट होगा, वो क्या होगा? ज्यादा होगा.
क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि जी, जब भी हम पोल्स की तरफ जाते हैं तो जी की वैल्यू क्या होती है? मैक्सिमम। जब भी हम पोल से इक्वेटर की तरफ आते हैं तो जी की वैल्यू क्या होती है? मिनिमम। सो दैट्स वाई पोल्स पे ग्रेविटेशनल जो जी की वैल्यू होती है, ग्रेविटी होती है, वो ज्यादा होती है, और इक्वेटर पे जो जी की वैल्यू होती है वो कम होती है, और सेंटर पे जो जी की वैल्यू होती है वो जीरो होती है। So this is the difference between how the value of g varies with the distance. When you go to a pole or when you coming from pole to the equator, so जो g की वैल्यू में वेरिएशन देखने को मिलती है, this is due to the effect of this particular thing, right? So let's say mostly जो हमारे planets होते हैं like मार्स हो गया, जुपिटर हो गया, वहां पे भी जी की वैल्यू आपकी वेरी करेगी। इट डिपेंड अपॉन द सरफेस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लैनेट्स, राइट? उस जो वैल्यू ऑफ जी है वो किस पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ द सरफेस ऑफ द मटेरियल, एटमॉस्फेयर पे भी डिपेंड करती है। सो देयर आर मैनी फैक्टर जो जी की वैल्यू को कम होना या ज्यादा होना वो डिपेंड करेगा, राइट? So now we come to the next thing, that is what is the formula that we have recently tried? That is G is equal to Gm upon R square. So from this formula you can calculate the value of G any of the planet. तो हमारे पास यहाँ पे जो अर्थ की जो ग्रेविटेशनल वैल्यू होती है वो कितनी होती है? जी की वैल्यू स्मॉल की, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड माइनस टू। सो एक्चुअली दिस वैल्यू इज द मिनिमम वैल्यू। अगर मैक्सिमम की बात करते हैं तो जी की वैल्यू क्या होती है? 10 होती है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जी इज व्हाट? 10 मीटर पर सेकेंड माइनस 2, राइट? सो बाय दिस थिंग वी कैन कैलकुलेट द न्यूमेरिकल्स आल्सो। ठीक है, देयर आर नंबर ऑफ काइंड ऑफ जितने भी न्यूमेरिकल होते हैं, हम यहाँ पे सारी वैल्यूज को पुट करके हम निकाल सकते हैं। Now we come to the next topic, that is weight. सो व्हाट इज वेट बेसिकली? अभी हमने बताया कि मैं कोई ऑब्जेक्ट कोई अर्थ पे रखूंगा तो उस पे जो डाउनवर्ड फोर्स लगेगी बेसिकली वो क्या है हमारा? वो वेट ही तो है। आप कोई चीज मान लो आपने कनक ली कोई लिफाफे में, जो कनक आपने डाली है लिफाफे में, दैट इज मास, दैट इज अ क्वांटिटी। और जब आपने उसका वेट किया तो वो वेट की कोई ना कोई वैल्यू आएगी बेसिकली। वो वेट ऑलवेज एक्ट डाउनवर्ड्स, जो अर्थ उसको खींच रही है बेसिकली दैट इज द वेट। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेट? बेसिकली इट इज द फोर्स which has been act डाउनवर्ड। जो बेटा डाउनवर्ड फोर्स होती है उसको क्या बोलते हैं हम? वेट बोलते हैं, राइट? सो जो वेट का फॉर्मूला होता है बेसिकली वो क्या होता है? एम इंटू जी। बेसिकली जो वेट का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारा? एम इंटू जी। और वेट के यूनिट क्या होते हैं? वेट इज जस्ट लाइक अ फोर्स, और फोर्स के यूनिट क्या होते हैं? न्यूटन। सो वेट के यूनिट भी क्या हो गए हमारे? न्यूटन हो गए। तो वेट के यूनिट भी हमारे क्या हो गए? न्यूटन हो गए। आई होप दिस टॉपिक इज आल्सो क्लियर टू यू। So basically from this we can calculate number of numerical based on weight. So let's say an example we are going to do. An object has a mass 10 kilogram, right? So मैंने आपको एक मास दे दिया which is 10 kilogram. So I have told you calculate the weight of the object. Calculate the weight of the object. So how we can calculate the weight? So you know the value of G. In the given question, we have the value of mass. So we can put the value over there. So we can calculate the weight of the object, right? So let's do this particular numerical. So let's see what we are getting the answer, right?
सो जो फॉर्मूला होता है हमारा वो क्या होता है, वेट इज इक्वल टू एम जी। सो यहाँ पे मास कितना गिवन है, 10 है, और आपको जी की वैल्यू क्या दी हुई है, 9.8। पॉइंट को हटा के हमने क्या लगाया, 10। 10 से 10 क्या हो गया, कैंसल। देन व्हाट वुड बी द वेट, 98 न्यूटन। So from this we can calculate the weight of the object. Any of the numerical will come. You know the value of g, and the given question they will give you the mass, right? From by putting the value in this formula, you can calculate the weight, right? Also, he or she can ask you the mass also. Calculate the mass. और वो आपको क्वेश्चन में वेट दे देगा और आपको पूछ लेगा कि इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का मास कितना। So from this you can calculate it well. So now we come to the difference between difference between mass and weight. तो अभी हमने बात करनी है बेटा कि मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है, राइट। सो मास और वेट में फर्स्टली मैंने यहाँ पे कॉलम बनाया, यहाँ पे लिखा मास, यहाँ पे क्या लिखा, वेट, राइट। मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती करते हैं, वो मास और वेट को सेम ही मानते हैं। बट बेटा मैंने अभी बताया, आप किसी शॉप पे गए, आपने उनसे कुछ भी खरीद लिया, सपोज आपने वहां से जाके चीनी लेनी है, तो वो जो चीनी लिफाफे में डालेगा दैट इज द क्वांटिटी, कितना उसने डाला। जब वो वेट करेगा तो उस पे क्या होगा, एक वैल्यू आएगी बेसिकली, ठीक है। तो मास क्या होता है हमारे पास, मास क्या होता है बेसिकली, इट इज द it is the quantity of a matter, it is the quantity of a matter। वेट की तो अभी हमने डेफिनेशन की थी, व्हाट इज वेट, इट इज द इट इज द फोर्स which act which act downward which act downward under the effect of what, gravity। वो फोर्स जो ग्रेविटी के इफेक्ट से नीचे हमें देखने को मिल रही है उसको क्या बोलते हैं हम, वेट बोलते हैं। नेक्स्ट जो डिफरेंस है, मास ऑलवेज कांस्टेंट। मास क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहता है, और हमेशा ये हमारे पास क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है और पॉजिटिव रहता है। मास कैन नॉट बी नेगेटिव, क्लियर। जो वेट होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, और इट कैन बी जीरो। और इवन आइंस्टाइन ने भी बता रखा है कि E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, राइट, कि जो एनर्जी और मास होते हैं वो आपस में चेंज होते रहते हैं। जो मास है वो तो कभी नहीं खत्म होता, इट ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट है। अगर ये मार्कर है, सपोज ये मैंने, इसका मास 10 किलोग्राम है, तो बेटा ये मार्कर की जो भी शेप है, अगर मैं इसको मून पे ले जाऊं तो ये मार्कर तो मार्कर ही रहेगा ना, ये मार्कर तो मार्कर ही रहेगा। पर अगर मैं इसका वेट देखूं यहाँ पे और मून पे, दैट विल बी डिफरेंट। सो बेसिकली जो मास होता है वो ऑलवेज क्या रहता है हमारा, कांस्टेंट रहता है, क्लियर। सो फ्रॉम दिस वी कैन राइट द डिफरेंस वन मोर, मास ऑलवेज रिमेन मास ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, mass always remain constant। So how we can write the difference now for the weight, weight weight can be changed from place to place। जो वेट है बेटा वो प्लेस टू प्लेस चेंज होता रहेगा। मैंने अभी बताया, अगर आपने गोल्ड का वेट इक्वेटर पे किया तो वहां पे मिनिमम होगा, कम होगा। अगर आप उसको पोल्स पे ले गए, अंटार्कटिका वाले रीजन में ले गए, तो वहां पे जब आप वेट करोगे तो वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, राइट। सो फ्रॉम दिस वी कैन से वेट कैन बी चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वेट क्या है, वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा, राइट। नेक्स्ट डिफरेंस होता है बेटा, जो मास होता है बेसिकली इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि जो मास होता है वो क्या होता है हमारे पास, स्केलर क्वांटिटी। एंड व्हाट अबाउट वेट, इट इज अ इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या होता है वेट, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी।
तो जो बेसिकली वेट है, मैंने अभी बताया, वेट ऑलवेज एक्ट डाउनवर्ड, राइट? वो हमेशा डाउनवर्ड लगेगा। इट मींस वो वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि एक तो हमें डायरेक्शन मिल गई और एक हमें उसका क्या मिल गया, वेट मिल गया, कोई वैल्यू मिल गई, कोई मैग्नीट्यूड मिल गया। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मास होता है उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। मास क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है। इट मींस इट हैज अ मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन। मास तो कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो वेट क्या होता है, चेंज होता रहता है, और इसकी पर्टिकुलर क्या होती है, डायरेक्शन होती है, विच इज ऑलवेज एक्ट डाउनवर्ड। So these difference we have, right? See, now we are going to do the fourth difference in this point. नेक्स्ट जो हम बेटा डिफरेंस क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, कि जो मास होता है बेसिकली उसके यूनिट क्या होते हैं, द यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। या ग्राम में होगा या किलोग्राम में होगा। बड़े यूनिट लोगे तो किस में होगा, किलोग्राम में होगा। छोटे यूनिट लोगे तो किस में होगा बेटा, ग्राम में होगा। और जो वेट के यूनिट क्या होते हैं, द यूनिट ऑफ वेट इज, क्या होते हैं यूनिट इसके, न्यूटन होते हैं। क्या होते हैं बेटा, न्यूटन होते हैं, क्योंकि फोर्स के यूनिट क्या होते हैं, न्यूटन होते हैं। फिर वेट के यूनिट भी क्या हुए, न्यूटन हुए। क्लियर? नेक्स्ट डिफरेंस क्या लिख सकते हैं इसमें, नेक्स्ट डिफरेंस हम क्या लिख सकते हैं बेटा, कि जो मास होता है बेसिकली, मास मास ऑलवेज पॉजिटिव, अभी बताया जस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मास हमेशा पॉजिटिव रहता है। मास कैन नॉट बी नेगेटिव। मास आप नेगेटिव कर ही नहीं सकते। क्लियर? तो जो ये मार्कर है ये 100% है अपने आप में। क्लियर? सो इट इज ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव। क्लियर? तो जो वेट होता है बेसिकली, वेट कैन बी वेट कैन बी इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, और इट कैन बी जीरो। तो बेटा वेट तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। क्लियर? सो बेसिकली फ्रॉम दिस वी कैन राइट द डिफरेंस बिटवीन द मास एंड द वेट। सो आई होप ये जो आपको टॉपिक है ये आप सभी को क्लियर होगा और आपने ये कंप्लीटली क्या कर लिया होगा, रिवाइज किया होगा। इवन आई हैव अपलोड 2 chapters, 2 topics already on my channel, so you can go through that topic also. Or also we have discussed today about the mass and weight, and we have derived the formula of a small g. So I hope आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, एंड ये अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करो। और आगे भी मैं, जैसे अभी हम फिजिक्स का टॉपिक कर रहे हैं, मैं आगे केमिस्ट्री और बायो के टॉपिक भी शुरू करूंगा। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।